So again everyone, good morning. I hope you all might be in the pink of good health. Yes, today we are going to start with another chapter of English literature, which is the Overcoat. The name or the title of the chapter is The Overcoat, written by the Nikolai Gogol. Who wrote this? Nikolai Gogol. Okay class? Now the first of all, let me tell you what is overcoat. Overcoat होता क्या है? So I'll tell you the coat which were old and traditional and people used to wear in ancient time. पुराने समय में लोग इस तरीके के ओवरकोट पहना करते थे when there was no modernization. कोई भी मॉडर्निटी नहीं थी. ओके नाउ अब देखो ये है कि ओवरकोट तो हमें समझ में आ गया ओवरकोट क्या होता है कि people used to wear in ancient time. Now there is a question, why this name overcoat? This name overcoat has been mentioned as a title in the story. कि यही नाम क्यों मिला इस स्टोरी को, मतलब इस स्टोरी में टाइटल के लिए ओवरकोट. So the question is why the poet has been mentioned this name, the overcoat, in this story. Okay, so I'll tell you this thing also in this chapter. कि भाई इसका आंसर बता रही हूँ. In this chapter we are going to talk about an old man. किसके बारे में बात करेंगे हम? एक बूढ़े व्यक्ति के बारे में बात करेंगे. We'll talk about an old man, okay, who was very hard working and he used to wear an old overcoat. और वो हमेशा क्या पहना करता था? एक पुराना सा घसा हुआ old coat, overcoat पहनता था. And that overcoat was actually torn and in the bad condition. So in this story we will get to know कि उसने कैसे इस कोट को पहनकर अपनी लाइफ को, मतलब अपना काम वर्क प्लेस पर जाता था. या फिर इसके बारे में एक और क्वेश्चन होता है कि डिड ही गॉट अ न्यू ओवरकोट. हम इस स्टोरी में क्या पता करेंगे कि उसने पहना तो है, क्या उसने नया ओवरकोट खरीदा. तो so before starting the chapter, let us know about the character of this story. First of all, I would like to tell you the character of this story. Okay, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, इस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स बताना चाहूंगी. So class, have a look. No. Yes, the chapter is The Overcoat, which is our second chapter of English literature. As you can see over here, The Overcoat, written by Nikolai Gogol. Okay, Nikolai Gogol, sorry. So characters are here. First is Akaki Akakiyevich. First character is Akaki Akakiyevich. Now, who is he? He is an old man in the story. He is actually that old man whom we are going to talk. ये वही ओल्ड मैन है, मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में हम अपनी स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, जिसके पास ओवरकोट है. ओके देन अब वो कैसा दिखता है, क्या है, तो मैं इसके बारे में बता दूंगी. द ओल्ड मैन हैड रेड हेयर. कैसे बाल है उसके? रेड कलर के बाल है. ओके एंड ही हैज विजुअल प्रॉब्लम, यानी ही वाज शॉर्ट साइटेड, मींस विजुअल प्रॉब्लम थी, उसे दिखाई नहीं देता था. ही यूज्ड टू वियर स्पेक्स एज ही कुड नॉट सी प्रॉपर्ली. हमेशा क्या पहना करता था? स्पेक्स पहना करता था, क्योंकि वो ढंग से देख नहीं पाता था. ओके His dressing sense was very bad. उसका जो ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत ही गंदा था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था. But in spite all, his behavior was very nice. He was hard working. Okay, he labored so much. So this is all about Akaki Akakiyevich, means the main character of this story. Second character is Petrovich. Who is Petrovich over here? Petrovich is a tailor in this story. The Petrovich, he is a tailor in this story. Okay class. Then the third, और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, स्टाफ मेंबर्स. ओके अब इसमें किसके बारे में बात करेंगे? स्टाफ मेंबर्स में. स्टाफ मेंबर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अकाकीविच के साथ वर्क किया करते थे. These are the staff members. We'll get to know about them in further details in our story. Okay, so without further delay, let's get started. A government servant on a budget finds that he needs to spend some of his money on an essential item.
यानी यहाँ पर जो ओल्ड मैन के बारे में बात हो रही है, ये एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, और उसे क्या है, अपने मनी को थोड़ा बचा करके अपने ऊपर खर्च करने की जरूरत है इस स्टोरी में। एज यू ऑल नो दैट ही यूज्ड टू वियर ओल्ड ओवरकोट। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसको कैसे जरूरत पड़ती है कि भाई इसे भी पहनना चाहिए और अपनी सेविंग्स करनी चाहिए जिससे ये कर सके। अब बजट कैसे फाइंड आउट करता है ये अपनी इसमें स्टोरी में, अपना बजट किस तरीके से निकालता है, वो हम सब पढ़ेंगे इसमें। ओके, सो इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट देयर वाज अ सर्टेन ऑफिशियल, यानी एक छोटे हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे सर्टेन ऑफिशियल मींस बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, नॉट अ हाई वन, ना ज्यादा लंबे, ना, मतलब इसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। इट मस्ट बी अलाउड शॉर्ट ऑफ स्टेचर। Here the meaning of stature is natural height. Stature का meaning क्या हुआ है? Natural height. It's all about characteristic. Okay. Somewhat pockmark. Pockmark means who has covered their face with marks. उनके cover मतलब face पे क्या होते हैं? बहुत सारे marks और scars होते हैं. Okay. Red hair और red color के बाल होते हैं and short sighted with the bold forehead, यानी बिल्कुल bold यानी plain forehead के, और विजुअल साइड मतलब विजुअलिटी ना हो क्लियर। ओके, तो ये किसके बारे में है? आई हैव टोल्ड यू, अकाकीविच के बारे में बताया जा रहा है, उनका कैरेक्टर बताया जा रहा है। रिंकल चिक क्या है? चिक्स कैसे रिंकल है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ द काइंड नोन एज सेंजुइन, यानी सेंजाइन मीन्स होता है यहाँ पर बेटा रेडिश ब्राउन कलर। कॉम्प्लेक्शन कैसा है? ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर है। ओके, तो ये किसके बारे में है? अकाकीविच के बारे में है कि कैसा दिखता है, कम हाइट है, ओके, फेस पर मार्क्स है, रेड हेयर है, विजुअलिटी नहीं है, मतलब विजुअल करने में प्रॉब्लम आती है, देखने में प्रॉब्लम आती है, चिक्स पर रिंकल्स है, ओके, रिंकल चिक्स है, एंड कॉम्प्लेक्शन कैसा है? ब्राउन कॉम्प्लेक्शन है। ओके, द सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस। द सेंट पीटर्सबर्ग इज अ प्लेस ऑफ रशिया। ओके, इट इज अ प्लेस ऑफ रशिया। सो उन्होंने क्या बताया है राइटर ने कि ये सब होने का कारण क्या है? क्लाइमेट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, कि ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है? क्लाइमेट ऑफ रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका? कि वहां का क्लाइमेट, उसकी वजह से लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन ऐसा हो जाता है। ओके, as for his official status he was what he called a perpetual titular counselor। अगर हम अब ऑफिशियल पर्पस की बात करेंगे, अभी तो हम क्या बात कर रहे थे? उसके फ्रेम की बात कर रहे थे कि वो कैसा दिखता है अकाकीविच। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ऑफिशियल स्टेटस। ऑफिशियल स्टेटस में उसको क्या कहा जाता था? perpetual tutorial means never ending, perpetual means never ending, tutorial means holding a purely formal position without real power। यानी एक नॉर्मल मेंबर जो होता है, कहाँ का बेटा? ऑफिस में जो नॉर्मल मेंबर होता है उसके बारे में बात किया गया एज ए काउंसलर। ओके, over which वहां पर as is well known some writers make merry and cracks their joke। वहां क्या होता था? इसके ऊपर दूसरे जो राइटर्स थे, ही इज वर्किंग एज अ राइटर, ही यूज्ड टू राइट लेटर्स। ओके, तो वहां पर क्या होता था? और जो उसके को-वर्कर्स थे वो इसका मजाक उड़ाते थे एंड मेड फन ऑफ हिम। ओके, obeying the praiseworthy, here the meaning of praiseworthy means some recognized as good। Okay, someone recognized as good। custom of attacking those who cannot bite back, यानी जो बैक बिचर्स होते हैं, बैक बाइटिंग, जो पीछे से बातें करते हैं, उन लोगों का कभी ये बुरा नहीं मानता था और ना ही उनको रिप्लाई करता था कभी भी। ओके, His name was अकाकी अकेकीविच, और ये कौन था? अकाकी अकेकीविच। मीन्स हमने दोनों इसके बिहेवियर भी देख लिया, हमने इसका फ्रेम भी देख लिया कि वो कैसा दिखाई देता था और इसका बिहेवियर कैसा था। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट इन दिस स्टोरी। So when and how he entered the department, जैसे ही वो डिपार्टमेंट में जाता था, and who appointed him, जिसने उसे अपॉइंट किया था, no one could remember। No one could remember means उसे कोई नहीं जानता था, ना ही उसे याद रखना चाहता था। His superiors treated him in coolly despotic fashion, यानी उसको कूली मीन्स डर्टी, यहाँ कूली का मीन क्या आया है? डर्टी। despotic मीन होता है associated with the typical of leader with great power and fashion। ओके, उसको क्या कहते थे कि डर्टी फैशन जानता है, इसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अच्छा नहीं है।
एंड हु आर सुपीरियर्स हियर? सुपीरियर्स कौन होते हैं? जिनकी पोजीशन हाई होती है, ओके। तो वो भी सुपीरियर्स भी उसका फन बनाते थे, मजाक उड़ाते थे। सब चीफ मतलब उसकी कैटेगरी के लोग, जो उसके बराबर के लोग थे, वुड थ्रस्ट अ पेपर अंडर हिज नोज विदाउट सो मच एज सेइंग, और क्या कहते थे? कॉपी एंड हियर इज अ नाइस इंटरेस्टिंग अफेयर। मीन्स कुछ जो उसके बराबर के लोग होते थे, जो उसकी कैटेगरी के लोग होते थे, उसकी पोजीशन वाले लोग होते थे, वो क्या करते थे? दे वुड थ्रस्ट मीन्स थ्रो अ पेपर अंडर हिज नोज, उसकी नोज पर फेंक देते थे, कभी उसके सर पर पेपर फेंक देते थे और मजाक बनाते थे और कहते थे इसे कॉपी कर लो, कॉपी इट, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग अफेयर। अफेयर मीन्स रिलेटेड टू दैट वर्क, कि ये उस वर्क से ही रिलेटेड है, इसे कॉपी करो, यानी ऑर्डर देते थे उसे। और एनीथिंग एल्स एग्रीएबल, और ऐसा कुछ कहते थे जिससे वो सहमत हो जाए, वो मान जाए, एग्री हो जाए, ओके। एज इज कस्टमरी अमंग्स वेल ब्रेड ऑफिशियल्स, ब्रेड या कास्ट, ओके, कि उसके वहां पर क्या थे? सारे लोग अच्छी कास्ट से रिलेट करते थे। जो लोग थे ना, हम सोच नहीं सकते कि ये लोग मजाक बना सकते हैं, मतलब मीन्स अच्छी कास्ट से रिलेट करते थे। एंड ही लुक्ड इट, एंड ही टुक इट, वो क्या करता था? he took that paper and looking only at the paper, not observing, handed it to him, okay, कि भाई ये भी नहीं देखता था मुझे ये पेपर किसने थ्रो किया है, किसने मुझे मारा है, कुछ ना देखकर he started doing his work, or whether he had to right to do so, simply took it and set about copying it। और कभी कभी क्या होता था कि उसे ऐसा करने की कोशिश भी करता था तो भी ना करता था, ओके, सिंपली उसको ले लेता था, जैसे ही उसके ऊपर थ्रो किया गया उसने वहां से वो पेपर उठाया एंड स्टार्टेड कॉपिंग इट, मीन स्टार्टेड राइटिंग इट और कॉपिंग इट, ओके, सिर्फ अपने वर्क से वर्क रखता था, ओके क्लास। The young officials laughed at and made fun of him and strewed bites of paper on his head. Again what they do, कि वो क्या करते थे? बार बार पहले नाक के ऊपर पेपर फेंकते थे, फिर उसके पेपर्स को लेते थे, रोल बनाते थे, इसके ऊपर बिट्स ऑफ पेपर, बहुत सारे पेपर कहाँ फेंक देते थे? उसके सर के ऊपर फेंक देते थे, कॉलिंग देम स्नो, और उनको क्या बताते थे? एज अ स्नो, ये कहाँ से आए? फॉल फ्रॉम द स्काई, कि मतलब मजाक उड़ाने के लिए क्या कहते थे? बहुत सारे पेपर फेंके और उनको क्या कह देते थे? स्नो, ओके। बट Akaki Akakiyevich answered not a word, but he didn't reply, okay, उसने कभी रिप्लाई नहीं किया, any more than if there had been no one there beside himself, और तब भी नहीं जब अगर कोई उसके beside यानी उसके पास में खड़ा है या उसके behalf पर बोल रहा है, तब भी कोई आंसर रिप्लाई नहीं करता था। If even had no effect upon his work, amid all these annoyances, he never made a single mistake in a letter. Here amid means is in between, the amid meaning is in between, अगर बीच में कोई भी वर्क में कोई भी इफेक्ट होता है, यानी कोई भी उसे परेशान करता, in between all these annoyances means the state of being irritated, annoyances means the state of being irritated, इतना इरिटेट होने के बाद भी he never made a single mistake in a letter, जो लेटर कॉपी करता था, लिखता था, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं करता था। होता है हमारे साथ, हमें कोई परेशान कर रहा है तो हम परेशान होकर कोई ना कोई तो मिस्टेक करेंगे, ओके, सबके साथ होता है, बट ही वाज वेरी मींस अपने वर्क को लेके इतना पॉजिटिव था, ही वाज वेरी पॉजिटिव अपने वर्क को लेकर कि भाई उसे कोई भी कुछ भी करो, कुछ भी कह दे आकर, वो नहीं सुनेगा, ना ही किसी को रिप्लाई देगा, बस वो अपने डेडिकेशन के साथ अपना वर्क बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करता था, ओके। But the joking became wholly unbearable. Unbearable means क्या होता है बेटा? कि अब हम उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे, अनटॉलरेबल, ओके, कि अब जोक क्या है? बहुत ज्यादा अनबेरेबल हो गया है। As when they jog means shake यानी किसी को हिला देना, jogged his hand and prevented means यहाँ पर क्या है? Prevented is the second form of prevent means होता है बेटा to stop, उसे हिलाकर to stop his attending to his work। अब जब ऐसा होता था कि अब टॉलरेट नहीं हो रहा है, now he can't tolerate anything because the co-workers are shaking his hand and stopping his work, stop him to do his work, okay, उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं काम करने के लिए। Then he would exclaim, तब वो चिल्लाकर बोलता था या बोलता था कि leave me alone, मुझे छोड़ दो अकेला, why do you insult me, आप लोग मेरी इंसल्ट क्यों करते हो, ओके। अब ये कब करता था? जब बहुत ज्यादा ओवर चीजें होने लग जाती थी उसके साथ, लाइक द पीपल ओवर देयर यूज्ड टू जॉग हिज हेड
and pretend to his attending the work. Okay, कि उसको prevent to attending his work, कि उसको काम करने से रोकते थे और उसको हिला दिया करते थे, जॉब कर देते थे. तो उसकी वजह से क्या हो जाता था, वो थोड़ी सी लो वॉइस में बोलता था, leave me alone, why do you insult me. And अब आगे भी देखिए, and there was something strange in the words and the voice in which they were uttered. Here the meaning of uttered is make sound of one's voice. कोई बोल रहा है और हम पीछे पीछे नकल उतार रहे हैं उसकी, राइट, दिस इज uttered. सो वहां पर क्या होता था, बहुत अजीब से वर्ड निकलते थे, वो वैसे भी किसी को परेशान नहीं करता था और जब बोलता था तो बहुत अजीब सी वॉइस में बोलता था और उसी वॉइस को क्या करते थे वो कोवर्कर्स अटर्ड किया करते थे, मिमिक करते थे उसकी. ओके, उसको चिढ़ाने लग जाते थे. ओके, it would be difficult to find another man who lived so entirely for his duty, not enough to say that Akaki labored with zeal. ऐसा कोई नहीं था, उसे नहीं लगता था कि अब यहाँ पर मेरे पीछे कोई बोलने वाला है ड्यूटी पर. Not enough to say that Akaki labored with zeal. हम ये भी नहीं कह सकते कि अकाकी वर्क अच्छा नहीं करता था. वो zeal means great energy के साथ वर्क किया करता था. ओके, ग्रेट एनर्जी हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, कि वो अच्छी एनर्जी के साथ वर्क कर सकता था. तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते थे कि वो बुरा था. He labored with love. वो अपना काम बहुत प्यार से करता था. Coping he found a varied means various. In his coping he found a varied and agreeable employment. Means जो भी वर्क करता था ना, वो अच्छे agreeable और various kind of employment ले लेता था. मतलब बहुत अच्छा काम किया करता था. तो हम कह ही नहीं सकते कि वो बुरा था. ओके, so class, in the first or second para, what we learn about the Akakevich, कि क्या होता था, the staff member in this office, the staff members or young officials, जितने भी सब officials थे, सब या फिर co-workers थे, always uttered him, उसका मजाक उड़ाया करते थे, and put the paper on him and said that copy him, कि उसके ऊपर पेपर फेंका करते थे और कहते थे इसको कॉपी कर दीजिए. ओके, देन अगेन एंड अगेन थ्रो पेपर ओवर हिज हेड एंड मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाते थे. बट अकाकी डिड नॉट से एनीथिंग, अकाकी कुछ नहीं कहता था. व्हेन दे स्टार्टेड जॉगल हिम started joggle him and prevent him to work. So one thing he used to say that leave me alone and why do you insult me, why you are insulting me. बस वो एक वर्ड बोलता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, आप मुझे इंसल्ट क्यों कर रहे हो. अकाकी got no respect from there. अकाकी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था बिकॉज ऑफ हिज ओवरकोट, ओल्ड ओवरकोट, कि उसको देखकर इसका जो स्ट्रक्चर था, पहनने का तरीका था, उससे उसको लोग पसंद नहीं करते थे. ओके, तो द यंगर फेलो ऑफ द ऑफिस टोल्ड स्टोरी अबाउट हिम एंड कॉल्ड हिम द स्नो, कि उसके बारे में स्टोरी बताते थे, उसके ऊपर पेपर फेंकते थे और उसको हमेशा क्या कहते थे कि ये स्नो है, कि ये ऊपर से आए हैं पेपर, हमने नहीं फेंके. ओके, नेक्स्ट पैरा हम पढ़ेंगे आगे. आउटसाइड द कॉपिंग के अलावा इट अपीयर्ड दैट नथिंग एग्जिस्टेड फॉर हिम. हियर एग्जिस्टेड मीनिंग होता है टू बी रियल इन वर्ल्ड, कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए, कोई रियल नहीं है. सिर्फ क्या रियल है कि वो जो अपना वर्क करता है. ही गेव नो थॉट टू हिज क्लोथ, लेकिन उसने कभी अपने क्लोथ्स के बारे में नहीं सोचा. His undressed uniform was not green but a sort of rusty muddy color. Here rusty meaning is covered with brownish substance. होता है पानी और जब एयर दोनों मिल जाती है तो हमारे कपड़े गंदे मेले से हो जाते हैं, दैट इज रस्टी, कि ब्राउनिश सब्सटेंस कुछ लग गया है कपड़ों पर और वो रस्टी हो चुके हैं ना. मडी कलर यानी मेला सा कलर. ओके, अनड्रेस हियर मीनिंग इज कैजुअल और यूनिफॉर्म. जो उसकी यूनिफॉर्म थी, इनफॉर्मल और कैजुअल यूनिफॉर्म थी, वो कैसी थी, ग्रीन नहीं थी. मे बी दे यूज्ड टू वियर ग्रीन यूनिफॉर्म, सो उसकी ग्रीन नहीं होती थी. इन स्पाइट ऑफ ग्रीन द कलर ऑफ हिज कोट वाज रस्टी एंड मडी. ओके, कैसा होता था उसका कलर, रस्टी होता था, जैसे कि बहुत गंदे से सब्सटेंस लग गए हो, ब्राउन कलर के, उसने कई दिनों से उसे धोया ना हो. ओके, तो ऐसा ड्रेस उसको दिखाई देता था, लोगों को दिखाई देता था और वो उसका मजाक बनाते थे. The collar was low, so that his neck, in spite of fact that it was not long, seemed inordinately. यानी उसकी जो कॉलर थी वो बहुत ही लो थी, छोटी थी, और नेक उसकी ऐसे निकली हुई थी. इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट इट वाज नॉट लॉन्ग, ऐसा लगता था कि उसकी नेक ही नहीं है, मतलब अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई देता था. इनऑर्डिनेटली मीनिंग मोर देन एक्सपेक्ट,
एक्सपेक्टेड एज यूजुअल, ओके, कि कुछ एक्सपेक्ट करना कि कुछ है भी क्या, उसको गर्दन का एरिया दिखाई नहीं देता था, नेक का एरिया, ओके। सो एज इट इमर्ज फ्रॉम इट, इमर्ज मींस कम आउट, जैसे ही उसकी गर्दन थोड़ी सी दिखाई देती थी, इट लुक लाइक जैसे कि प्लास्टर किटन्स हो, छोटे छोटे प्लास्टर किटन्स हो। ये कौन बातें करते थे? वहां के लोग, एम्प्लॉयज जो थे उस ऑफिस के, वो लोग बातें किया करते थे। which wag यानी शेक देयर हेड, जो कि क्या है, प्लास्टर किटन से वो क्या कर रही है, ऐसा लग रहा है अपने आप को शेक कर रही है, ओके, अपने हेड को शेक कर रही है। एंड आर कैरिड अबाउट अपॉन द हेड ऑफ स्कोर्स ऑफ रशियन फॉरेनर्स। यहाँ पर पूरा क्या बताया गया है बेटा, इस लाइन में इसकी कॉलर का स्ट्रक्चर बताया गया है। जो ओवरकोट है, कॉलर कैसा है उसका, बिल्कुल लो है, जिसमें उसको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, नॉट सीमिंग लाइक दैट ही हैज नेक, कि उसके नेक भी है क्या। और अगर जब भी नेक थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती थी तो इट लुक लाइक प्लास्टर किटन्स व्हिच मूव देमसेल्व्स, ओके, कि ऐसी प्लास्टर किटन्स दिखाई देती थी जो अपने आप को मूव कर रही है, ओके। On reaching home, he sat down at once at the table. जब वो घर आता था, वो टेबल पे बैठ जाता था। Supped his cabbage soup. सब यानी पीना, सिप लेना, ओके। अपना कैबेज सूप पीता था क्विकली, जल्दी से। He rose from the table. Rose here, rose is the second form of rice. R-I-S-E. It is the second form of rice. From the table and copied paper which he had brought home. और क्या करता था, देखो बेटा, ये जरूरी नहीं ये ऑफिस में ही वर्क करता था, ये घर भी वर्क लेकर आया करता था, इतना हार्ड वर्कर था, ओके। तो क्या करने लग जाता था, जैसे ही अपना कैबेज सूप उसने लिया, उसके बाद टेबल से हटकर जल्दी से अपने पेपर को कॉपी करने लग जाता था, which was he brought home, okay. If there happened to be none, अगर वहां कुछ नहीं होते थे, he took copies for himself, वो अपने लिए कॉपी रखता था, for his own gratification, अपने खुद के प्लेजर के लिए, ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ वर्क कर लिया करता था, स्पेशली if the document was not worthy, not on account of its style, but of its being addressed to some distinguished person, यानी different kind of person, okay, कि अगर उसके पास कुछ होता नहीं था लिखने को, तो वो अपने बारे में या different kind of person के बारे में लिख दिया करता था। Having written off to his heart's content, he lay down to sleep, स्माइलिंग एट द थॉट ऑफ द कमिंग डे। वो लिखने के बाद ये सब कुछ क्या करता था, थोड़ा सा सो जाता था और सोचता रहता था, स्माइल करता था आने वाले दिन के लिए, of what God might send him to copy on the morrow. Morrow meaning the following day. Means हमें होता है हमें अब क्या वर्क मिलने वाला है, तो ये भी ऐसे ही सोचता था कि what God will give me, what kind of work the God will give me, okay, in the following day, in the next day. Morrow here meaning is in the following day. बस इतना सोचा करता। There exists in St. Petersburg a powerful foe of all who receive a salary of 4,400 rubles a year. Here rubles meaning is a kind of money, जैसे हम rupees यूज करते हैं, वहां पर क्या यूज होता है, rubles, ओके। तो उसको सैलरी कितनी थी उसकी, जब वो वर्क क्या करता था सेंट पीटर्सबर्ग के प्लेस में, तो उसकी सैलरी थी 400 रुपीज, ओके। देयर और देयर अबाउट या फिर नियर इट, 400 तो हम हमारी उसने राइटर ने अपनी तरफ से बताया, या फिर देयर अबाउट या फिर नियर इट, देयर अबाउट हियर मीनिंग नियर इट। This foe is no other than the northern cold, although foe here mean is enemy. Foe meaning क्या होता है, enemy, कि यहाँ पर foe किसके लिए है, enemy के लिए है, कि जो cold था, जो winter season था इनका, वो is like an enemy, although it is said to be very healthy. But वहाँ का environment तो healthy था, बट जो सर्दी थी, जो और भी चीजें जिनसे वो इफेक्ट होता था, अब वो इफेक्ट कैसे होता था, क्योंकि उसके पास एक ही ओवरकोट था, वो भी टॉर्न था, ओके, वो भी फटा हुआ रस्ती ऐसा अजीब सा था। At an hour when the foreheads of even those who occupy exalted, here exalted meaning higher position, एक with the coat, एक means pain। अब क्या होता है बेटा, इसका जो कोट फटा हुआ था पीछे की तरफ से, उससे क्या होता था, उसके शोल्डर में पेन होने लग गया था, सर्दी के मारे, ठंड के मारे, ओके, कोल्ड हो गया था, तो उससे क्या होता है, उसको पेन होना स्टार्ट हो गया। एंड टीयर्स स्टार्ट टू देयर आईज, और क्या होता था, और भी लोग हैं, ऐसा नहीं यही है, और भी जो लोग होते थे उनके साथ भी अगर ऐसा होता था, तो इतनी सर्दी लगती थी कि ऑटोमेटिकली आंसू आ जाया करते थे आंखों में। The poor titular counselors are sometimes quite unprotected. और जो वहां के जो पुअर लोग थे, जो पुअर वर्कर्स थे, काउंसलर्स थे, वो अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फील करते थे। अनप्रोटेक्ट मीन्स सेफ फील नहीं करते थे, ओके। दे ओनली
Salvation lies in traversing as quickly as possible. Salvation यानी being saved, कि कैसे save किया जाए. Traversing means to cross quickly as possible, यानी जल्दी से जहां बैठे होते थे वहां से उठकर चले गए, या फिर किसी और के वहां जाकर बैठ गए जहां उनको थोड़ा सा वार्म फील हो. In their thin little overcoat, thin means जो ओवरकोट है पीछे से रग हो चुके हैं, फेड हो चुके हैं, उसमें से 5 or 6 streets, and then warming their feet in the porter's room. Porters mean coolie. यहाँ पर किसका और मेंशन किया है, किसके बारे में मेंशन किया है, जब उनको सर्दी लगती थी तो नियर बाय कूली लोग रहते थे, उनके पास जाकर ये थोड़ा सा वार्म फील करते थे, प्रोटेक्ट फील करते थे खुद को. And so thawing all there, thawing here mean is become soft and or liquid, यानी जब वो ठंड के मारे बिल्कुल सॉफ्ट अपने आप को वार्म फील करने लग जाते थे. टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिशियल सर्विसेज, अपना वर्क स्टार्ट कर देते, which has become frozen on the way, जो कि रास्ते में चलते वक्त वो बिल्कुल रोक चुके थे अपने वर्क को. अब आपको नेचुरल सी बात है बेटा, सर्दी लगेगी, हमें वर्क नहीं किया जाएगा हमसे. अब बहुत ज्यादा एक्सेस सर्दी होती है, विंटर है और वहां हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस यू कैन फील इट. ओके, सो नेक्स्ट, you must know that Akaki Akavich overcoat served as an object of ridicule. Ridicule means होता है बेटा something appeared silly. Ridicule means something appeared silly, यानी object of fun. वो क्या था, काकी का जो ओवरकोट था वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका था, किसका, फन का, मजाक उड़ाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका था सब लोगों के पास. टू द ऑफिशियल, ऑफिशियल कौन है, को-वर्कर्स, जो उसके साथ वर्क करते थे, वो हमेशा किस पर मजाक बनाते थे, उसके ओवरकोट पे. They even refused it to the noble name of overcoat. वो even यहाँ तक overcoat नहीं कहते थे उसे. What they called? They called it dressing jacket. और उसको क्या कहते थे, dressing jacket. ओके, मजाक में उसका नेम क्या बना दिया था ओवरकोट का उन्होंने, ड्रेसिंग जैकेट. Seeing how the matter stood, अब इससे थोड़ा अकाकी ना थोड़ा इरिटेट होने लग गया था. Akakievich decided that it would be necessary to take the overcoat to Petrovich. As I have told you, the second character Petrovich, who was a tailor. Okay, उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं पेट्रोविच के पास जाता हूँ मेरा कोट लेकर एंड इसको रिपेयर करवा लेता हूँ. अब who is Petrovich? Petrovich, the tailor who lived somewhere on the 4th floor up a dark staircase. 4th floor पर रहता था, एक शॉप थी उसकी, and who in spite of having खुद की शॉप नहीं थी, but one eye and poke mark all over his face, busied himself with considerable success in repairing the trouser and coats of official and others. क्या करता था जो टेलर था, वो कोट भी रिपेयर करता था, ट्राउजर्स and some other things, okay, for the officials, co-workers के लिए, okay, workers के लिए. That is to say, when he was sober means serious, and not nursing some other scheme in his hand. ये सिर्फ अपना टेलरिंग का ही वर्क करता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था. कौन है यहाँ पर, अकाकी, सॉरी पेट्रोविच. ओके क्लास, सो जब अकाकी का इसका हम समरी देख लेते हैं. जब अकाकी का बहुत मजाक उड़ने लग गया था, अकाकी got no respect from his superiors or anyone else in his office. The younger fellows of the office told story about him and called him the Snoop. Akaki loved his work, for which he got 400 rupees as a salary. जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि अकाकी क्या था, वर्क को बहुत लव करता था, and he got 400 rupees as a salary. Okay. One day his back and shoulder began to bother him, and the problem was his coat. Because due to his coat, he got a several pain on his shoulder. So the problem was his coat, as it became torn. वो क्या था, फट चुका था, and it became thin from the back, which was not protecting him against the icy weather. जो कि बहुत प्रोटेक्टिव नहीं था. किसके लिए, आईसी वेदर, जो वेदर था वहां का उसके अकॉर्डिंग नहीं था, वो कोट फट चुका था. ओके, The lining of the coat were apart, so his co-workers made fun of it. जो लाइनिंग होती है कोट में, जो अटैचमेंट होता है अंदर, जो कपड़ा होता है, वो बिल्कुल फट चुका था. ओके, They called it dressing jacket. उसको क्या कहा करते थे, उसके जो भी लोग थे, उसके जो co-workers थे, वो क्या कहते थे उसे, dressing jacket. Akaki decided to take it to the tailor, who was Petrovich. Okay, Petrovich had a shop in an apartment on a 4th floor of a building. पेट्रोविच के पास एक शॉप थी छोटी सी, जहां पर वो टेलरिंग किया करता था. And what he did, Petrovich repaired clothes, coat, trouser and
some work or officials. Okay, so Akaki went to him. Akaki उसके पास चला गया. अब देखिए क्लास इसके बारे में और for the further details we will be reading in our next class, and we'll get to know that how Akaki labored and struggled to get a new coat. अकाकी कैसे स्ट्रगल करता है, क्या करता है, ये हम सब अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके क्लास? So till then, do practice of the word meanings. And if you have any query related to this chapter, related to a story, whatever we have read, so you can ask me. Okay, class? Okay, class. Thank you for joining the class. Bye-bye.